welcome or welcome back to our channel. There has been some major changes happening on my skin, hair and health. So I thought of making this video because this video has a lot of things about acne, about hair growth, about my health, some common health issues that you might face. So this video is really helpful. So make sure you watch it till end and do not skip, because I'm going to be spilling the tea about major internet trends about skin care, hair care. मैंने बहुत चीजें try की and मैं चाहती हूँ आप उन्हें try ना करो, because कुछ अच्छे रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं रहे हैं. So you better watch this video and then go for them. And guys, how can I forget, our new collection at Suresh Fashion is live and I'm wearing this beautiful top from the same collection. It's called Rangreez and it's like one of my favorite collection ever. Everything that you see in the new collection is exclusive to the prints, to the design, everything. Guys, this beautiful top that I'm wearing, it has this mint color and then this yellow appears. It is super pretty. So I've mentioned the link in the comments. You have to check it. You cannot miss on this one. So yeah, let's begin the video without any further delay. Okay guys, so first of all, let me give you like a brief on why I got this acne. January, so basically January भी नहीं, आप कह सकते हो September से I've been traveling and I've been traveling a lot. And तब से लेके अभी तक, इनफैक्ट आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कल ही I'm back from Mumbai to Jaipur. तो मेरा ट्रैवलिंग बहुत चल रहा है. नाउ क्या होता है ना ट्रैवलिंग में, आज बिकॉज वी हैव टू शूट एवरीथिंग, तो मुझे मेकअप लगाना ही पड़ा. एंड उसकी वजह से, बिकॉज माई स्किन कुडंट ब्रीथ व्हाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो, आई एम अप्लाइंग मेकअप, तो उसकी वजह से माई स्किन लाइक gotten worse. सब कुछ बहुत बुरा हुआ and that's the reason why I have so much acne. Then acne तो मुझे हुआ ही. I went to this मेला and if you are following me on Snapchat and stuff तो आपको पता होगा, because मैं अपनी स्किन के बारे में, अपने बालों के बारे में Snapchat पे बहुत बातें करती हूँ. तो if you're not following me, you have to guys. तो आप ये वाली वीडियो देखने से पहले आपको पूरी हिस्ट्री पता होगी. So yeah, I got this. Then while sleeping yesterday or like day before yesterday while sleeping, I scratched myself. Can you see that? This is like a bad scar. So I've got scars on my face. I've got acne on my face. Now, what all I'll be covering in this video is first how you can get rid of your acne overnight. But देखो मेरे लिए सिर्फ overnight नहीं है, मैं इसको 2 दिन बोलूंगी क्योंकि मैंने 2 दिन में legit अपने acne खत्म किया है. I'll tell you why. Okay, so basically मेरे फेस पे ना अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या acne है और क्या scar है, तो यहाँ पर मैं कहीं वीडियो लगा दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए what all are scars and what all is like a proper active pimple. So ये वाले सारे scars हैं and like these are acne. तो ये जो स्कार्स है ना, ये मेरे अभी मतलब 2 दिन पहले ही आई हैव गॉट थोड़ा सा एक्ने एंड मैंने उसको 2 दिन में ठीक किया. वो कैसे किया मैं आपको बताऊंगी. दूसरा पॉइंट दैट आई विल बी कवरिंग इज ऑल दीज थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इंटरनेट, गेटिंग वायरल अबाउट एक्ने, हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ एक्ने ओवरनाइट, और इफ यू ईट दिस यू गेट रिड ऑफ एक्ने, ये वो. बिकॉज मुझे इतना एक्ने हुआ था ना, मैंने चीजें रिसर्च करना चालू किया एंड मुझे फिर ये चीजें दिखी तो मैंने ट्राई भी किया. मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, व्हाई यू शुड ट्राई देम, व्हाई शुड नॉट ट्राई देम, व्हाट ऑल साइड इफेक्ट्स आर देयर, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, and don't skip it at all. Third thing that I'm going to be talking about is my hair, of course. अब traveling होगी तो skin पे problem होती है, तो hair पे भी होती है. So yeah, I have seen a little bit of hair fall and other things here and there. वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. Fourth thing that I'm going to cover is my health. I had major acid issues, major stomach ache issues. So let's start with the acne part first. तो भाई acne रातों रात गायब हो जाएगा. पहली बात तो रातों रात गायब तो नहीं होता है, कम से कम 2 दिन तो मैंने जैसे आपको बोला मैं मानती ही हूँ, क्योंकि मैंने लेजिट 2 दिन में अपना acne सही किया है. अब इसमें 3-4 चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है, विच विल हैव टू डू. पहली चीज, अगर एक्ने हो गया है तो दोस्तों प्लीज गेट योर हैंड्स अवे फ्रॉम योर फेस. प्लीज नेवर टच योर फेस इफ यू हैव इवन 1 पिंपल. अगर आपने गलती से उसको भी ऐसे स्क्वीज तो इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बट डोंट इवन टच योर फेस. ट्रैवलिंग के टाइम मुझे एक्ने हुआ एंड जैसे मैंने बताया ट्रैवलिंग के टाइम भी मुझे मेकअप करना पड़ रहा था, तो आई वाज लिटरली टैपिंग. मैं तो मतलब टच भी नहीं करती, आई वाज लिटरली टैपिंग दैट स्पॉन्ज ऑन माय फेस, रनिंग ब्रशेस थ्रू माय skin. So that is something you should never do. Second is try to avoid dairy products. मैं ये नहीं कहूंगी properly मतलब बंद कर दो ऐसा वैसा, वो मैं भी नहीं कहूंगी, क्योंकि किसी लोगों को होता है. इफ यू डोंट कंज्यूम डेयरी तो कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती है. मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी आप प्रॉपरली छोड़ दो, बट फॉर सम टाइम आप उसको छोड़ सकते हो, बिकॉज दैट रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर एक्ने रिकवरी. मैंने ये चीज देखी है एंड बिकॉज आई हैव दिस होल थिंग ऑन माई फेस राइट नाउ, आई कैन से इट विद फुल कन्विक्शन की कुछ टाइम के लिए डेयरी स्टॉप करके देखना, you will literally see changes. Another thing that you have to honestly give up on is sugar. Now I don't have sweet tooth, but जिनका होता है ना, I know how hard it is to stay away from sugar. Like for me it's ramen. I can't stay away from ramen. I have to eat it once in 15 days. तो मैंने एक साइकिल बना लिया है that I'll share for my stomach जब मैं stomach की बात करूंगी. But yeah, try to
totally give up on sugar, you will see major change in your face, the texture of your face, the kind of healthy glow that you have on your face. एक बार आप शुगर जब कट डाउन करोगे ना तो देखना कितना फर्क पड़ता है, एक्ने में भी पड़ेगा. नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप मेरी सालों पुरानी वीडियो भी खोल के देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने बताया, आज भी मैं बताऊंगी क्योंकि भैया काम करता है, लिटरली काम करता है. सो व्हाट आई डू इज आई स्लीप, I brush my teeth, I sleep, and then when I wake up in the morning, that saliva that you have in your mouth, do not swallow it. First, just take your, so like, आपके पास अगर 5 उंगलियां है ना, यू हैव 5 एक्टिव पिंपल, तो आपको एक बार इसको डिप करना है, उस पिंपल पे लगाना है, एक बार डिप करना है, दूसरे पिंपल पे लगाना है. आपकी कोई भी उंगली रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना. सो लाइक 5 pimples 5 fingers, 10 pimples 10 pimples, 10 pimples 10 fingers. You have to keep that in your mind. This thing ना, this saliva thing literally works, guys. 2 दिन के अंदर आई हैव सीन माई पिंपल्स गोइंग अवे. मतलब होता है ना, मुरझा जाते हैं पिंपल्स की. एक तो पस वाला पिंपल है और आप एक दिन ये लगा रहे हो, दूसरे दिन देख रहे हो तो लिटरली मुरझा गया है. सो आई कंसेक्यूटिवली डिड इट फॉर 2 days एंड 2 दिन में मेरे लिटरली एक्ने गायब हुई है. दोस्तों, आई हैव टू से लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. आई नो लाइक इट साउंड्स रियली डिस्गस्टिंग बट इट वर्क्स. It genuinely works. Now, if you don't want to try this, there's one more thing that you can do. अब हर कोई सलाइवा वाला चीज करने के लिए रेडी नहीं होता है या कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उनके लिए एक और चीज है जो आप कर सकते हो. मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एंड इट इज ऑल्सो इक्वली गुड यू गाइज. इसने मेरे कई, जैसे ये वाला जो थोड़ा जिद्दी वाला मार्क है ना, इस पे मैंने वही वाली चीज की थी. यहाँ पर मेरा सबसे जिद्दी पिंपल हुआ था, मतलब थोड़ा सा पस वाला पिंपल हुआ था. सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको लेना है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची जो रहती है उसको आपको कूटना अच्छे से, उसका पाउडर बनाना है, उसमें पानी ऐड करना है, वो पेस्ट, थिक पेस्ट जैसा होना चाहिए, वो आपको लगाना है रात को एंड आपको सुबह उसको रिमूव कर देना है. In 2 days, in literally 2 days, you will see your this pimple getting dry. मतलब dries in वही जो मतलब मुरझा जाना टाइप जो चीज होती है ना, वो हो जाएगा. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सलाइवा थिंग, यू कैन डू दिस. अब एक्ने कैसे ठीक करनी है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर एक्ने से जो डार्क स्पॉट्स पीछे रह जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो उन्हें आप कैसे ठीक करोगे. तो मैं आपको बताती हूँ. जब मैं मनाली गई थी, कश्मीर गई थी, तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे पिंपल्स हुए थे, जिसका एक तो बहुत ही हल्का सा मार्क अभी भी है, एक मेरे यहाँ पर हुआ था जो पूरा ठीक हो चुका है, एक इन दोनों के बीच में था जो, ये तो मेरे अभी रिसेंट, ये नीचे वाला तो मेरा रिसेंट 2 दिन पहले ही था जो अब ठीक हो चुका है. ये वाला थोड़ा ज्यादा ही पस वाला था, इट विल टेक सम टाइम. बाकी यहाँ पर और यहाँ पर भी मेरे थोड़े डार्क स्पॉट्स थे जो अब बिल्कुल जा चुके हैं. आई बीन यूजिंग लॉरियल का जो ये ग्लाइकोलिक वाला सिरम आता है. इट इज अ वेरी नाइस सिरम व्हेन इट कम्स टू डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, क्योंकि ऑफकोर्स मैं बहुत ज्यादा बाहर भी घूम रही थी तो सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन भी हो गया था. सो दैट लाइक रियली रियली हेल्प. यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूंगी उस सिरम की. तो उस सिरम को मैंने स्पेशली रात में सोने से पहले यूज किया. दिन में तो क्या होता है ना कि मुझे मेकअप वगैरह करना पड़ता है तो मैं स्किन केयर पर तो ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बट रात में आई मेक श्योर दैट आई डू माई स्किन केयर रियली रियली वेल. तो मेरे केस में नाइट स्किन केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप दिन में भी इसको यूज कर सकते हो. बट मेक श्योर यू वेयर लाइक गुड सनस्क्रीन, गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन ऑन योर फेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना स्किन केयर कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो डार्क स्पॉट्स के लिए आप ये वाला सिरम यूज कर सकते हो. इट इज रियली नाइस. मेरी एक्ने जर्नी का A to Z मैंने आपको बता दिया गाइज. आई रियली रियली होप कि आपको इसमें से कुछ हेल्पफुल मिल जाए. एंड अगर एक्ने है तो प्लीज जो भी मैंने बोला ट्राई करके देखना. आई एम टेलिंग यू इट विल वर्क फॉर यू. ट्राई करने के बाद एटलीस्ट 1 हफ्ते ट्राई करने के बाद सारी चीजें मुझे अपडेट देना, इस वीडियो पर आकर वापस से कमेंट करना. आई विल जस्ट लव टू नो कि आपको चीजों के कैसे मिल रहे हैं रिजल्ट्स, एंड मुझे वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है. नाउ वी आर मूविंग टू अ कंट्रोवर्शियल पार्ट. कंट्रोवर्शियल ही बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं कि इससे एक्ने ठीक हो जाती है, इससे एक्ने ठीक हो जाती है, बट एटलीस्ट फॉर मी इट डोंट वर्क. मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, यार हो सकता है उनकी ठीक हुई हो, बट मेरी नहीं हुई. सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा वायरल बात मैं आपको बताती हूँ, इज टू हैव अ क्लोव ऑफ गार्लिक, एंड उससे आपकी कैसी भी एक्ने हो, चाहे हार्मोनल हो, चाहे एकदम से आपको एक्ने हो गई हो, जैसी भी एक्ने हो वो सही हो जाती है. ओके, सो इसकी दो चीजें, 2 पहलू है. पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव. नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट लाइक न्यूट्रल बोल लो. पॉजिटिव मैं आपको बता देती हूँ. गार्लिक खाने से बेसिकली सुबह मैंने खाली पेट जब गार्लिक खाया ना, मेरे को जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम थी, जिसमें मैं बाद में आऊंगी, बट ये उसका पार्ट है, मेरी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम बहुत ठीक हो गई गाइस. मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ठीक हो गई. तो इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी इस गार्लिक वाली चीज को. इट रियली रियली वर्कड. बट फिर मैंने जब इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया तो कई लोगों ने ये चीज बोली भी थी दैट अगर आपका बीपी लो रहता है, जो मेरा रहता है, तो आपको गार्लिक रोज डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए. तो इसके काफी मतलब चीजें मुझे वैसे पढ़ के मतलब जानने को मिली. सो
मैं ये नहीं कहूंगी दैट अगर आपको स्टमक इश्यू है तो गार्लिक खाना चालू कर दो, नहीं। अगर आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो तो हफ्ते में 1-2 बार ये चीज ट्राई कर ली एंड आपको लग रहा है भाई अच्छा वर्क कर रही है, देन आप ऑफ एंड ऑन ट्राई करो। बट फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना कि अगर आपको एसिडिटी है तो ये गार्लिक वाली चीज आपको ट्राई करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे ना और भी बहुत लोगों ने इस चीज के लिए बोला था जब मुझे मेरी स्टमक इश्यूज हुए थे कि हैव गार्लिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इट विल वर्क। सो मैंने एक्ने के लिए वो चीज खाना चालू किया क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे इसके बारे में एंड मेरे स्टमक लाइक इट वो बहुत अच्छा रहा। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने खाया एक्ने के लिए था बट मेरे पेट पे उसने अच्छा मतलब एक बोलते हैं ना इफेक्ट उसका रहा। नाउ कमिंग टू द न्यूट्रल पार्ट, आई वोंट कॉल इट नेगेटिव, नो आई विल कॉल इट न्यूट्रल बिकॉज इट डिड नॉट वर्क ऑन माई एक्ने ऑनेस्टली। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैंने हर दिन इसको खाया, हर दिन खाया। सो पीपल आर लाइक ओ दिस इज द डे 1 दैट आई स्टार्टेड ईटिंग इट, दिस इज डे 30 व्हाटएवर एंड इट वर्कड। अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई चीज मैं खा रही हूँ ना तो उसका मेरे को ऐसा लगता है कि उसका फर्क सबसे ज्यादा होता है। जैसे मैंने डेयरी बंद की, मैंने जो आपको बताया कि सारी चीजें मैंने की, उससे मेरा एक्ने मतलब कुछ सही हो रहा है। बट अगर मैं गार्लिक खा रही हूँ उसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट है तो फिर मेरा एक्ने सही हो रहा है तो वापस क्यों हो रहा है? सही तो मुझे पता है कि मैंने सारी चीजें की तो उसकी वजह से 2-2 दिन में मेरा एक्ने सही हो रहा है क्योंकि वो ड्राई होता हुआ दिखता है ना आपको, भाई हील हो रहा है, वो चीज मुझे दिख रही है। बट वापस क्यों हो रहा है? सो आई रियली डोंट थिंक कि इसमें गार्लिक खाने से कुछ हुआ, क्योंकि अगर आप कोई दवाई लेते हो तो वो आपका बीमारी जो होती है ना उसको रोक देती है, वो नहीं होने देती। बट ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। सो ये गार्लिक वाली चीज अगर ट्राई कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा मतलब बोलते ना सोच समझ के ट्राई करना। अगेन इट्स टोटली योर चॉइस बट लाइक दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। कमिंग टू माई हेयर एंड इट्स ग्रोथ गाइज, सबसे पहली चीज तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इज आई कंटिन्यू माई रोजमेरी वाटर, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ नो मैटर वॉट, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग। मैं हर दिन अपने बालों में कंसेक्यूटिवली रोजमेरी वाटर डालती हूँ। एंड बहुत लोग मुझसे ये चीज पूछ रहे थे कमेंट्स में, अभी भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमें उसे धोना है क्या, रोजमेरी को धोना है क्या? नहीं गाइज, रोजमेरी को आपको धोना नहीं है। आपका जैसा भी स्कैल्प हो, आप रोजमेरी वाटर रात में लगाओ, अपने बालों में स्प्रे करो। अगर सुबह आपका हेयर वॉश डे है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेट इट सिट इन योर स्कैल्प। वो आपके स्कैल्प को कोई गंदा नहीं करेगा बिकॉज इट्स जस्ट वाटर। अनदर थिंग दैट आई एम कंसिडरिंग फॉर माई हेयर इज द डर्मा रोलर्स, बेसिकली वो जो नीडल वाले रोलर्स आते हैं। सो मैंने बहुत वीडियोस देखी वेयर यू नो वेस्ट इन्फ्लुएंसर्स आर क्लेमिंग कि इसकी वजह से उनके बालों की ग्रोथ हो गई है, उन्होंने लिटरली अपनी ग्रोथ दिखाई। भाई मेरी तो ये जितनी भी ग्रोथ है मेरी तो आई वुड यू नो गिव द होल क्रेडिट टू रोजमेरी, क्योंकि आपने मुझे बहुत टाइम से देखा है। मेरी देखो बहुत तो बाल मेरे लंबे होके ये वाले बाल पीछे जा चुके हैं, अब ये बाल और निकल रहे हैं मेरे, ये छोटे छोटे बाल और स्टार्ट हो गए, आप देख रहे हो ये वाले छोटे छोटे बाल और मतलब उगना चालू हो गए। तो मैं वो चीज कंटिन्यू रखती हूँ एंड आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मैं ये नहीं कहूंगी आज करो कल बाल उग गए, ये कभी नहीं हो सकता, आपको टाइम लगेगा। जैसे मेरा फिर से ना हेयर लाइन इज लाइक ठीक हो रही है, टच वुड टू दैट। सो डर्मा रोलर क्यों मेरे को ट्राई करना है, बिकॉज इट गिव्स यू मैसिव हेयर ग्रोथ इज व्हाट पीपल आर क्लेमिंग। So if you want me to do a dedicated video on derma rollers, please do comment and let me know, because I haven't like started as yet. I am considering it, as I said. I will only do it if you guys comment and like you really want me to try it, क्योंकि मैं खुद भी करना चाहती हूँ because like बहुत अच्छे उसके results हैं and with that you have to use some serums. वो सब मैं I will talk about that later, but like I'm considering this for my hair. If you want me to do it, I will do it. मैं अपना proper एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपनी पूरी growth, अपनी जो भी जर्नी रहेगी वो दिखाऊंगी. So yeah, do comment and let me know about that. And apart from that, of course, मेरे जो जूस चलते रहते हैं, ABC जूस है, इसके अलावा अच्छा डाइट है, वो सब मेंटेन करना होता है। ऑल्दो मैं टू बी ऑनेस्ट पिछले कुछ महीनों से नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवल किया मैंने, तो मेरे को यू नो थोड़ा बहुत हेयर फॉल भी हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स आप एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में आओगे तो यार वो तो चीज होगी। जैसे व्हेन आई गो टू मुंबई मेरा हेयर फॉल पता नहीं ठीक हो जाता है, बट जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो वो चालू हो जाता है एंड पहाड़ों में जाकर मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। पर मुझे पहाड़ी पसंद है भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, तो मतलब होती है ये चीजें मेरे साथ। तो एक चीज जो गाइस मैं आपको एडवाइस करूंगी अगर आप फ्रीक्वेंटली मतलब ट्रैवल करते हो, इज नेवर लड़कों के लिए बता रही हूँ मैं पहली चीज, इज टू नेवर पुट योर हेयर इन अ कैप। दैट जस्ट मेक्स योर हेयर रियली बैड, क्योंकि क्या होता है ना, पसीने आते रहते हैं, वो कैप में ही रहते हैं, उसकी वजह से आपके यू नो फॉलिकल्स एंड ऑल वो क्लॉग होते हैं, फिर आपके बाल टूटना चालू हो जाते हैं, वो मत करो। सो फॉर बॉयज दिस इज द वन थिंग जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है। इनफैक्ट विद सूरज ऑल्सो इट हैपेंड, ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग ऑल दोस थिंग्स, तो मैंने उसको कैप लग वगैरह लगवाना बंद कर दिया। फॉर गर्ल्स गाइज, I mean sorry, girls,
try to always and literally always keep your hair in a look like a braid से अच्छी हेयर स्टाइल आपके बालों के लिए while traveling कुछ नहीं है भाई। जूड़े मैंने बहुत बना लिया, I'm telling you, बहुत मेरे इस पूरे होल जर्नी के इसमें फेज में मेरे बाल टूटे हैं। जब मैं प्लीट बनाती थी मेरे बाल सही रहते थे, जूड़े में बाल बहुत टूटते थे। एंड वन मोर थिंग दैट यू गाइज मेक श्योर यू डोंट डू इज टेक ब्रेक्स फ्रॉम हेयर वॉश। नहीं प्लीज, बिल्डअप हो जाता है, फिर डैंड्रफ हो जाता है, बाल टूटते हैं। हेयर वॉश रेगुलर होना चाहिए, नो मैटर हाउ मच यू आर ट्रैवलिंग, होना ही चाहिए। गंदी स्कैल्प इज द बिगेस्ट रीजन यू हैव लाइक मैसिव हेयर फॉल। सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है, आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं होती, आपकी स्कैल्प पे बिल्डअप है, डैंड्रफ है, उसकी वजह से आपके बाल टूट रहे हैं। सो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। एंड या लाइक माई 6 months एक्सपीरियंस ऑफ स्किन हेयर एंड हेल्थ वाइल ट्रैवलिंग इस पूरे वीडियो में मैं समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज स्किप मत करना, हर एक चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या नाउ कमिंग टू माई हेल्थ यू गाइज, I had major acidic bloating issues and जैसे मैंने बताया garlic like really helped me. Another thing that helped me because acidic stomach एक बहुत ही common problem हो गया है, whether it teenagers, with children, with old age people, सबके साथ ये चीज है। And I don't know, जयपुर में तो कुछ ज्यादा ही है for some reason। हर दूसरे बंदे से आप पूछो तो like I have acidic issues ये वो। So one thing that I really want you to not do is फर्स्ट ओवर ईटिंग बंद कर दो भाई, ओवर ईटिंग बंद कर दो, बहुत प्रॉब्लम होती है लिटरली लेजिट। आपको लगता है मेरे पेट पे फैट है, फैट नहीं है, वो गैस है, ब्लोटेड है, आपका जो टमी है वो ब्लोटेड है। दूसरी चीज, स्पाइसेस खाना कम कर दो, मिर्ची खाना थोड़ी कम कर दो। जैसे कि आप सब जानते ही हो, आई लव रामेन, आई लव स्पाइसी नूडल्स एंड स्टफ, बट मैंने लेजिट वो खाना बंद कर दिया है। मैंने अपने लिए एक साइकिल बनाई है, इन एवरी 15 days आई कंज्यूम अ बाउल ऑफ रामेन बिकॉज आई लव इट, आई कैन नॉट गिव अप ऑन दैट। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं हर टाइम ही खाती रहूँ बिकॉज वो चीज़ सही नहीं होती है। उसकी वजह से जब मैंने बहुत ज्यादा खाना चालू कर दिया था, आई रिमेंबर मेरे को डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिजीज, व्हाट डिड ही से, I forgot the name of the disease, but it was major. But then when we got the test done, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट यार वैसी चीज अगर आपके दिमाग में भी आती है ना तो डर जाता है इंसान। सो स्पाइसेस को कम कर दो, ट्राई टू ईट लाइक थोड़ा सोबर फूड, क्योंकि एसिड एक ऐसी चीज है जो 10 और बीमारियां लेकर आ जाता है। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट एंड ट्राई टू कंज्यूम गुड स्टफ। मतलब देखो, आई अंडरस्टैंड, मैं खुद भी बहुत स्पाइसी खाना पसंद है, ये चीजें पसंद है, वो चीजें पसंद है। ट्रैवलिंग के टाइम नई ऑप्शंस होते हैं तो खाने पड़ते हैं, बट ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी होती है आपके स्टमक के लिए। मैंने स्टमक सफर्स ना, यहाँ पर वो चीज दिख जाती है, ये यहाँ पर और यहाँ पर। क्योंकि जब मुझे एसिडिक और ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी तब भी मेरे को एक्ने थोड़ा बहुत हुआ था। एंड आप किसी से भी पूछ लो, इफ यू हैव स्टमक रिलेटेड इश्यूज तो एक्ने आपको रहेगा ही, बाल आपके टूटेंगे ही। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विद दैट वी कम टू एन एंड गाइज। आई होप इस वीडियो में से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी एंड आप उसे इम्प्लाई करोगे एंड यू लिव अ बेटर लाइफ एंड यू हैव ब्यूटीफुल स्किन एंड ब्यूटीफुल हेयर। ऑल्दो लाइक यार देखो, जैसी भी हमारी स्किन हो, जैसे भी हमारे बाल चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, कुछ भी हो, इट्स ऑल नॉर्मल। हर किसी को एक्ने होती है, हर किसी को पिगमेंटेशन होता है, बाल टूटते हैं, चीजें बहुत कॉमन है। बट वी स्टिल हैव ऑप्शंस, वी कैन वर्क ऑन देम एंड मेक देम बेटर। मेरे को भी एक्ने यार, एंड आई face camera like every day, so I never want you to feel underconfident at all. You are beautiful and you will always be. So guys, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्लोइंग, बाय।